Hello, everyone. Yesterday night and today became the doom night and day for all of us, not only in this country, but the whole world, because we lost a Ratan, an invaluable Ratan, and that is Ratan Tata. And a person beyond, I would say, kindness, a person, the best philanthropist that I have known, the best industrialist, a leader, a visionary in a true self. Today, we have gathered here people from Music Veranda family and also somebody very special to talk about him, that is Mr. Amit, who is a facilitator, who is also a leadership coach and a author of a book, The Elephant at the Dinner Table. I know it is painful for everyone. It feels personal. It feels personal, is what everyone is writing. And you should see a life of a person by the lives he has touched. And I think he hasn't left even a single one in this world. Because whether it is Gen Z, whether it is millennials, whether it is from before, every generation loves him. And I'm sure heaven has gained a beautiful angel today because he is making heaven also a better place. He was my hero. He will always be. He is my inspiration. Yes, one thing remains that I was not able to meet him in physical, but I know his blessings and his path will be a light for not only me, but millions to come or who is already here. And I am very thankful for all of you to be here, not to mourn him, but to celebrate him and his legacy, what he has left behind. Because he was a person who actually taught us what we do for others became what we do for ourselves. So, Mr. Amit, thank you for taking out your time and please tell us what would you like to talk about, Mr. Ratan, the jewel Tata. Thank you, Shweta, for the introduction. And yes, this is a day of I would say mixed emotions. While there is a lot of sadness, at the same time, like you rightly said, we need to celebrate the life of um, this jewel the real jewel of our country, of our nation, and somebody who has been a beacon of hope, a beacon of compassion, humility, love for animals, love for people, um, and touching lives of millions of people. So talking about touching lives, I mean, though, like you, Shweta, I never got an opportunity to meet him or attend any function where I could be close enough to listen into him. But having worked as a leadership trainer, I work with a lot of organizations. So Tata is one of the organizations that I've been associated with since 2016, 17. Tata Motors in particular, and Tata Communications and TCS. So one thing that I see is, the amount of leadership depth that visionaries like him, visionaries like JRD Tata and several other Tata luminaries. So I think what I noticed was the common theme that I've noticed by interacting with the leadership is humility, simplicity, the desire for action, the desire to make a difference, um, always looking at innovative ways of things, and not be flashy about themselves. Um, and I think a lot of that comes from the pedigree that and the legacy that the Tata House has created over these multi generations. The other thing that I closely connect with the Tata Group is the element of who to connect with the masses,
that we are doing something which impacts the larger community, at the same time empowering a lot of women workforce. Last year, Tata Motors invited me to speak at their Tata Motors factory on the outskirts of Pune. And as a part of the the visit, they took me out for a tour to their factories. And I was so impressed with what they've achieved over these years. But what left a very lasting impression on me was that one of their flagship products, the Tata Harrier SUV, the entire line, the entire conceptualization of design to manufacturing is managed by 100% women workforce. I mean, I get these goosebumps as I speak with you on this. It just brings back the humility with which even the senior most leadership treats you. The amount of I've been to several Tata locations. The amount of effort and sincerity with which they focus on people capability development. I've been to Tata Management Training Center in Pune. Well, the libraries, despite we are talking about digital connects and digital learning, the amount of focus on promoting uh, learning is amazing. I've worked for organizations like Infosys, Wipro, who are also very, very high on learning, but nothing that compares with the amount of learning initiatives and the amount of um, and lastly, because people are so emotionally connected, people are so driven by the purpose, you see very low attrition rates in Tata companies. That's again something which is very unique. Or you will see a lot of examples of, oh, my father served the company, he retired from Tata, and I'm the third generation. Or my mother was there, or my sister works. So that's the impact that the company has made, and a huge global imprint. I mean, since yesterday, I've been reading, I mean, the amount of accolades he's getting from the global media, whether we talk about BBC or we talk about Elon Musk's video or so many other things that are happening around us. He's सच्चे दिल से जैसे बोलते हैं ना नाम रोशन कर दिया हमारे देश का, in and his legacy will live on. So that's what I would like to say. I mean, there's so much that's there on internet and conversations, but I just wanted to share. This is the closest that I could connect with the Tata. Thank you. Yeah. Thank, thank you, Mr. Amit. The way you have told, it is shown in their employees actually, because we have had the opportunity to talk to Tata Steel, give presentation, and the way they have been like humble and talking to us like with lot of kindness shows like what they built in people, and Yeah. that is very important. And I was just watching, as everybody must be since last night, one video that how he would be remembered, and he has said just one thing, that he would like to be remembered as a person who made a difference, nothing Mhm. more, nothing less, and in his own words. And I'm sure he didn't even made a difference. He made centuries of differences actually in Mhm. every field for the people in either we talk about the rural development, or we talk about the economy of our country, or we talk about the women empowerment, or we talk about the animals. He was a big dog lover. Yeah, absolutely. And we also have Dr. Mansi with us. She is a founder and director of W for W Foundation, and also a researcher, and someone who's a listener first and then a learner. So, Dr. Mansi, we would love to hear from you as well for Yeah, our hero, I'm sure everyone's hero, and an inspiration in himself. So, Dr. Mansi. yeah. Thank you, Shweta, and sabhi ko namaste, pranam, good evening. And it was good to listen to Amit, especially because he has been engaged with the Tatas for a long time. And I'm someone who has actually not had any opportunity to engage in any of his endeavors, or also from my endeavor side getting any support in indirectly. But yes,
Last year we had our water festival. Actually, this year, February, we got a small grant from Tata Steel. And I was almost about to embark on a project with Tata Salt, but I did not get the project for reasons unknown to me. Having said that, I think there is no one in this country, whether you went to college or school, no one, literally no one in this country who doesn't know who is Ratan Tata. I think that's the biggest impact he has had. He has transcended, this whole dimension of this divided India. Almost everyone knows Tata, whether through product, whether through efforts, whether through him as a human being. So I think that's the foundation he has left behind. And definitely a step further for any father to see how a son can do. I mean, every parent wants their children to do better than them. And I think Ratan Tata lived that. So I want to bring few aspects here. First of all, he was an architect, and I'm so happy that he did not practice architecture of the building, which he did for 2 years in his early career, first 2 years. So because I'm also an architect, and I also don't practice now. So I feel very good that he could realize in his early career, not by himself, but also I think it's the pressure of running the company. He had to leave it aside and join the Tata Group as one of the leaders. But eventually he became architect of modern India, I must say. I mean, it's not something which I'm over exaggerating, but if you look at some of the business houses in the country, I don't think anybody stands ahead of him. It's not by the billion worth the company is, but also I remember in one of the talks he was saying there's a difference between industrialist and a businessman, and things like that. And he makes these very interesting humors in some of his presentations, which I sometimes listen to his work or his words. But something that I'm very closely following in his footstep, and I also believe in that. And I think when I made last night, when I heard it in the middle of the night when the news came in, and a quote which he has often referred to, and probably that is also genesis and foundation of the depth and the vastness of his work, as well as his companies, which he was emeritus now founder director, and lot of things. And I wish to really bring forth that quote here: if you want to walk fast, walk alone, but if you want to walk far, walk together. And I take it very seriously. I know this quote for quite long time. And the way I operate also in my own life, I strongly believe in collective action, to the extent that I also went on to do my PhD, looking at how people come together to protect lakes or to destroy lakes. So I was looking at both sides, how collectively people do things in a manner. And that also helped me work with Nobel laureate Elinor Ostrom. So the point I'm trying to make is that I think what Amit was talking about, that these people take pride in that legacy even in their own lives, that, oh, my father was working, I am working, or I'm third generation. I think this is where I have read many of his quotes in the past as well. But since I embrace this philosophy in my own life, I mean, I think it has gone very deep into the way he also managed the whole, I think, conglomerate of companies, a constellation of, I can say, or stars. I mean, all the companies which are in Tata, people take pride working with them. So I think there's a lot to learn from him as far as, uh, I mean, I can say a successful person. And as rightly discussed a little bit in between, there is also something very important to learn from him as a human being. And I think very quickly this point of dogs came into picture. But I think we have to make a very clear distinction here, that he was fond of stray dogs, not the dogs we domesticate. Because this is a serious difference, because I have seen dog lovers who have domestic dogs, and they really hate stray dogs.
So basically, then they are discriminating between dogs. And this is where I also like his work on stray dogs. You know, he's not talking about dogs, he's talking about stray dogs. So we have to also make this distinction very clear. And another thing which I think is a very important contribution, which I off late also I realized that it's a serious contribution, and his connection with the younger generation, and an important startup which comes out very clear, especially because when I'm looking at senior people, and my mother is senior now, and I also looked through that app which Shantanu Naidu, who was one of his close friends in the later years of his life. You see many of pictures and news and events with Shantanu Naidu, who started this startup for good fellows, where old people it's like a matchmaking between the senior generation and the younger generation. I think these are a few of the things which I appreciate about it. But personally, I am not an idol worshipper. So I have my pinch of salt with all the great people in the country, including Gandhi, because last time we were talking about Gandhi. So I keep that for other time, but I think we have to see the other side as well, how capitalistic development has also reshaped the Indian democracy. And this is where I see a serious intervention by the Tata groups in also reshaping democracy. And when I'm saying this, I'm saying it in the negative sense. So I don't want to discuss that part today. But yes, the way capitalistic society has arisen in this country, Tata has contributed to it, and we have to take it with pinch of salt. So I will stop here. But having said that, his contribution to humanity, to the nation's wealth, everything does not reduce. But yes, as I mentioned, I am a critic observer. I am not an idol worshipper. So I will stop here. Okay. Thank you, Dr. Mansi. And we do get it. Every great personality, or I would say every human being, will have the Absolutely. beautiful It's not the side human and being. the great Yeah. side. And I Okay. think it's not about him as a human being, and that is also, I think, maybe it should not be misinterpreted and misunderstood or misheard. It's about the way the private sector has taken over the country. So I didn't mean him as a human being, but the whole capitalistic way of looking at the society. Him as a professional. You just meant him as a professional. No, I meant the company. I meant the company, not him as a person or Then professional. fine. Yeah. Then fine. Then it's all right, because for me, he's my idol, and along with my grandfather, definitely. And I'm sure, definitely, as you said beautifully, what all we can learn from him. And Yes. with regarding the company, yes, you are right. You have to take everything with a pinch of salt as well. And we understand that. And thanks for clarifying, because there are many listeners listening who love him dearly. So I'm sure you do as well. I also love him, but then love does not mean that we cannot critically appraise, so that's my point. Yeah, thank you. Definitely. I'm talking about the capitalization of companies, not the Yeah. person per se. Definitely, definitely. Thank you. Thank you, Dr. Mansi, for your time and for your words Thank on you. the visionary, Dr. Sir Ratan Tata. And now, how can we not listen a song from either Dinesh ji or Madhu Mukesh ji, whoever would like to sing a song for our beloved Sir Ratan Tata? Dinesh ji, maybe. रतन टाटा जी के लिए तो आज वैसे तो मैं उनका फैन रहा हूँ। उनकी वे ऑफ स्टाइल, वर्किंग एटसेट्रा, सिंप्लिसिटी और समाज और देश के लिए जो उन्होंने किया है, उसका मैं हमेशा उनका फैन रहा हूँ। उसके लिए इंस्पिरेशन हमेशा रही है उनकी पूरे देश के लिए। और कल से जब से ये सुना है, तब से और ज्यादा ये हो गया मन में। अब मेरे ही नहीं हुआ, मैं तो सोशल मीडिया देखता हूँ तो लगता है पूरा देश ही आज उनको याद कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, एज ए ह्यूमन बीइंग, बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी बिजनेसमैन के लिए कि आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एज ए बिजनेसमैन जनरली लोग सबको प्रेज नहीं करते हैं,
लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई महात्मा ही चला गया देश से, जैसे मैं देख रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी, और उनके लिए तो मैं सुन रहा हूँ अमित जी से और मानसी जी से, यही अच्छी बात है। थैंक यू। दिनेश जी कुछ गाना ट्रिब्यूट तो दे मेरे दे। को सिर्फ दो लाइन याद आ रही है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। भी लाइंस भी याद नहीं आ रही, लेकिन ये दो लाइंस उनके लिए है। शायद मधु मुकेश जी आगे बढ़ा दे। थैंक यू। थैंक यू। एंड मधु मुकेश जी, आपकी तरफ हमारे बिलावेड बिलावेड सर रतन टाटा के लिए जो भी आप गाना चाहें। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मैं हमेशा ही इंस्पायर रहा हूं। उनके जितने भी किस्से सुने हैं तो वो सुन करके लगता है कि आदमी जिसको कहा जाता है एक्चुअली कि ऐसा होना चाहिए आदमी जो सबके लिए, मतलब कि बॉटम टू टॉप, इवन यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी उनका कितना वो रहा कि उन्होंने अपना जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट था वो उसके कारण उन्होंने कैंसिल किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा बिकॉज माई डॉग इज इल। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर वो इतनी सी बात को अगर अपन सोचा जाए तो कहाँ जाकर के टिकती बात है, मतलब कहाँ, मतलब एक जरा सा आदमी को कितना सा होता है, कितना घमंड करता है। मेरे को तो ताज्जुब होता है कि वो आदमी के जब मैंने संस्मरण सुने आदरणीय नितिन गडकरी जी से और अदर अदर से कि वो उनका खुद का बैग खुद ही उठाते थे, किसी को देते नहीं थे, गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचते थे, वो ड्राइवर नहीं रखते थे। मतलब क्या 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 सीखे, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। हम तो इतने समय इतने लंबे चौड़े हो रहे हैं कि हमको समझ नहीं पड़ रही कि हम क्या कर रहे हैं। बट बहुत 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 कुछ सीखने के लिए। मैं एक दो लाइन गाऊंगा मैं उनके लिए, और जो मोमेंट हो गया ठीक है। आपको लग गया होगा पता कौन सा गाना है। एक दिन बिक जाएगा। जिंदगी के सफर में ये सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक अंतरा और गाना चाहूंगा। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। We all miss always Shri Tata Sahib. Thank you so much. थैंक यू मधु मुकेश जी। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी के सफर में जो बीत जाते हैं मुकाम वो फिर नहीं आएंगे कभी भी।
यस। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। बढ़िया। जो इन्होंने मुकेश जी ने बोला कि इन्होंने नितिन गडकरी के थ्रू सुना कि वो उनके एक जो उनका कुत्ता था उनका वो बीमार हो गया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये किंग चार्ल्स जो उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे उनका निमंत्रण था यूके में आने का, और ये छोटा सा फंक्शन नहीं था कि मना कर दिया। तो वही बिल्कुल बिल्कुल वही बात सोच करके तो मैंने कहा हाँ, कितना बड़ा अचीवमेंट था। और हाँ, अपन एक मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अपन कहाँ है, कुछ भी नहीं, मतलब धूल भी नहीं है, और अपन क्या सोच रहे हैं, कहाँ है, कहाँ उड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत कुछ सीखना उनसे वाकई में। मैं क्या बताऊं सर, मेरे को तो ऐसी शख्सियत से ऐसी मोहब्बत होती है कि जिसका हिसाब नहीं। वो ठीक है आज फिजिकली हमारे साथ नहीं है, पर वो ता जिंदगी ता दुनिया रहती दुनिया तक वो याद किए जाएंगे जो उन्होंने काम किए हैं। और वो हमें ही नहीं, हमारे लीडर्स को सीखना चाहिए, हमारे आर्टिस्ट को सीखना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। तो उनका एक अभी एक शख्स कुछ कह रहे थे कि अगर वैसे उनका जो उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, अभी टीवी पे सुन रहा था मैं, कि अगर रतन टाटा श्री के सब लोग हो जाए तो ये दुनिया वाकई में रामराज्य हो जाए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मधु मुकेश जी। आई एम श्योर जो भी यहाँ पे अभी प्रेजेंट और जो भी हमें देख रहे हैं वो सब आपसे अग्री करेंगे, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग, हाउ अ ह्यूमन बीइंग शुड बी, रतन टाटा वाज द ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दैट। एंड ये यस। बॉस कहने में भी मुझे डाइजेशन नहीं हो रहा है, मुझे कल रात से मैं शॉक में ही हूँ अभी तक। And I'm sure Dr. Rohini shares the emotion, and everybody in this world shares the emotion, because it was something not expected, but life goes on. I feel like जैसे कहते हैं ना, show must go on. So वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन मैं संगीता जी से भी चाहूंगी कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें सर रतन टाटा के लिए। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तो बहुत कुछ बोल दिया। ये तो ऐसा एक ये हो गया, गैप हो गया। आई थिंक इसको फिल होने में बहुत समय लगेगा। सच इंडिविजुअल्स, दे डोंट कम इजली ऑन अर्थ। एंड वो जो भी, मैं उनको भी सुन रही थी, आपको मानसी जी को भी सुन रही थी। ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इट वाज हिज लेगेसी, उसको तो उनको आगे ले ही जाना था। बट उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेकर के, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, एक तरफ इतना स्टैगनेंट लोग कर रहे हैं अपने फैमिली फंक्शंस में, और दूसरा आदमी जो चुपचाप सबके लिए काम करता है, सीनियर सिटीजन के लिए, एनिमल्स के लिए, जो जॉबलेस यूथ है उसके लिए। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। बीइंग दैट ही कुड नॉट लीव दैट, दैट वाज हिज प्रोफेशन। पर उससे हमको सीखना है कि उसमें रहते हुए हाउ ही डिड इट, एंड ऑल साइलेंटली। किसी को उन्होंने कभी शो नहीं किया, और खुद भी इतना ग्राउंड टू अर्थ रह करके अभी पहले से भी पता है हमें, पर आज भी और पढ़ लिया हमने थोड़ा कि वो कभी जब जाते थे स्कूल से तो कार में नहीं जाते थे, वो पैदल जाते थे। और एक अभी और आ रहा था टीवी पे ही सुना मैंने कि किसके यहाँ डिनर गए थे, तो बोले ड्राइवर कहाँ, तो बोले मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसको भी अपने फैमिली के साथ पे बच्चों के साथ डिनर करना है। चीजें, आई थिंक हम लीडर्स को तो छोड़ दें, हर एक इंडिविजुअल, अगर हम लोग इन द सोसाइटी एंड एज अ पर्सन अपने में, अगर ये आदमी समाज में ये सब करने लगे तो समाज खुद ही एक अच्छी जगह बन जाएगी। और हम अपने फ्यूचर जनरेशन को ये सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। तभी मैं एज अ टीचर, मेरे को फिर हमेशा ख्याल आ जाता है कि ये चीजें बच्चों की सिलेबस में क्यों नहीं होती, ऐसे लोगों की जीवनी क्यों नहीं पढ़ाई जाती। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बातें, वो तो बच्चे बाद में जानेंगे, लेकिन उनके जो क्वालिटीज हैं, उनकी जो ह्यूमिलिटी है, उनका जो लव है, उनकी जो मतलब सेक्रीफाइसेस है, और वो जो विजनरी थे। ये नहीं कि हम हैं बिजनेसमैन तो हमें बिजनेस नहीं करना है, वो आम आदमी के लिए कितना सोचते थे और करते थे। तो ये चीजें हमें सीखनी बहुत जरूरी है। बाकी क्या कहें, इट इज वेरी फ्यू वर्ड्स, आर वेरी फ्यू, वी कैन नॉट एक्सप्रेस अबाउट हिम। एंड वो जो इन ऐसे लोगों को हमें मोर्निंग नहीं करना चाहिए। वी शुड बी प्राउड कि दैट सच ए पर्सन एग्जिस्टेड, और उसकी लेगेसी हमेशा ही रहेगी। तो ये है, भारत रत्न नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी वी हैव गिवन हिम दैट। थैंक यू। थैंक यू संगीता जी, एंड डेफिनेटली यू आर राइट, हम लोग सब दे ही चुके हैं, भले ऑफिशियली मिले कि ना मिले। हम तो हमारे लिए, सबके लिए वो रतन ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और अभी मैं एक एक लाइन और सबसे भी सुनना, मतलब वो चाहूंगी कि वो भी कुछ कहें। तो डॉक रोहिणी, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये खुद भी एक
बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस पे काम कर रही हैं. तो आई एम श्योर she also has a lot to say about Sir Ratan Tata. Thank you, everyone. As Shweta said, we share the emotions, and I come from, I'm a product of Tata legacy. I come from the institution, Tata Institute, Indian Institute of Science. And definitely, I would agree with Amit ji. Of course, everybody identifies with the emotions, but if you have lived through any lived any part of your life through that legacy, you would uh, understand that inculcation that inspires us, and that that actually inspires everyone to have some kind of tutelage under Tatas. It is, and it's in their blood, it's in their culture. It's not just about it's very sad that we have lost Ratan Tata, and the next ones, Leah, Maya, Noel, everybody has pretty large shoes to fill. And but if you see that grit that Tatas have demonstrated over the generations, from right from Nasirwanji Tata, Jamshedji Tata, and the vision that they've had, the that's phenomenal. And along with that, introducing to have encountered the problems in the new establishments that they started, and to come with the solutions to those problems, rather than be trying to beat the problem, coming with workable solutions that actually brings in everything from and that actually builds the life of people who are supporting you in that establishment. That's a very big vision that they have, and that's how they have actually contributed to. They were the first ones, or one of the first ones, to bring in foreign money into the country when there was a civil war in US, and we sold cotton to Tata sold cotton to England. That was, I think, first time that we remember in our history that उस time में हमारे यहाँ पे English पैसा आया था, which was when they were ruling us, when English people were ruling us. So right from that time until now, it has been an amazing journey, inspirational journey. And it's just that he was our द्रोणाचार्य. Now अब तो यही बोल पाएंगे कि वो हमारे द्रोणाचार्य हैं. हम कुछ भी 1% भी कर लेना उनके बारे में, हम 1000 बातें कर सकते हैं, मगर वही बात है, हम 1% भी कुछ कर लेना उनके जैसा, तो हमारी तरफ से अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा. और वही विजन होना चाहिए कि हम कहते हैं ना, प्यार हमें बहुत सुंदर बना देता है. तो वही विजन है. आपको अगर अच्छा दिखना है तो आपको पहले देना है, आपको पहले प्यार करना है, तभी आप अच्छे दिखोगे. फाउंडेशन लगा के नहीं दिखोगे. बट लैक्मे our own लैक्मे, I mean, no people prefer लैक्मे over Maybelline, right? थैंक यू एवरीवन. I mean, हम सब तो बोलते ही जाएंगे. आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए. कोई गाइए ना कुछ उनके लिए. बहती हवा सा था वो गाओ प्लीज. Definitely. And Dr. Mansi, thank you very much for your time and for your kind words, and also for your love for Sir Ratan Tata. Thanks. Please continue. I have to go because Durga Puja hai, Kolkata hai, so please bear with me. Thanks a lot. Bye. Bye. मैं एक लाइन गाऊं प्लीज. हाँ, sure. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. हम तो ढूंढते ही रहेंगे. थैंक यू. Thank you. I would just Dr. like to add one more thing. What Rohini said ना, कितने बड़े visionary थे. In 60s I was in school in जमशेदपुर में मैं थी. I think वहां से मैंने 6 तक किया. उस समय जो टाउन की प्लानिंग टाटाज had done, वो थिंक इंडिया में बाकी बड़े शहरों में बहुत बाद में आया 60s में. और कितनी भी बारिश हो जाए वहां लाइट भी नहीं जाती थी. सो वेल प्लान्ड एंड सो नीट एंड क्लीन.
So this is what the legacy has given. Thank you, Sangeeta ji, and thank you, जमशेदपुर Dr. ना Mohi. जमशेदपुर ना बहुत अच्छा स्थिति है, बहुत अच्छा, वेल प्लान्ड है एकदम। अभी मैं लेकिन जब मैं दोबारा गई तो वो जमशेदपुर मुझे नहीं दिखा जो पहले 60s में पहले था। होगा, हाँ। लेकिन फिर भी पुराना जमशेदपुर अभी भी है, कुछ हिस्सा है उसका। और मैं टाटा स्टील प्लांट जब गई थी, उन्होंने अपने वर्कर को इतनी अच्छी तरह ट्रेन किया हुआ है ना, हर एक को वेलकम करते हैं वो लोग, और बहुत अच्छे से वो अपना प्लांट दिखाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस टाटा स्टील या टाटा इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो टाटा मैं का भी, हम जाना, लोग भी जा गए थे, ग्लास फैक्ट्री, बहुत सारे उसके एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज है, सबको देखा। रतन टाटा का तो जाना एक हमारे लिए तो बहुत बड़ा शौक और लॉस है, बहुत ज्यादा। That great that their mm, that Tatas demonstrate, take the stones and that people throw at you and build monuments out of it. They've built monuments in over 100 countries. जस्ट आई एम इंटरप्ट यू, आई एम सो लकी, मेरे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर इंफोसिस और टीसीएस की बिल्डिंग है मेरे, मतलब बिल्कुल जस्ट बिहाइंड, मतलब जस्ट स्टोन थ्रो आई से। तो इतना बढ़िया, मतलब आई एम सो लकी कि उनको मैं दिन भर मिलता रहूंगा, देखता रहूंगा, या उस रास्ते से गुजरता रहूंगा। एक्चुअली यही है ना कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या इस प्रोग्रेस को हम कभी नहीं रोक पाएंगे, इससे तो हमें समझौता करना है, बट द वे ही डिड दैट इज व्हाट वी टू लर्न। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं आजकल, दे शुड टेक अ लेसन, सो देयर इज नो नीड, इट इज नॉट अ लॉस। आई थिंक ये अभी जो जागरूक हो जाए बच्चे और इसको करें तो ये आगे चलता रहेगा। मैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 2 लाइनें सुना दूं। जरूर। गाने की 2 लाइनें हैं। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, जाके फिर न आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। आज सुबह मैं Thank यही you. सोच रही थी कि अब कोई नई खबर नहीं रतन आई। टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, हम मेरी तरफ नहीं बल्कि वरांडा की तरफ से। थैंक यू शशि जी। और मेरे ख्याल से अभी जो रहते हैं उनके बारे में कहने के लिए वो एक तो गौरव जैन है और एक देवी सर हैं, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी एक एक लाइनें उनके बारे में बिफोर वी रैप अप दिस आवर सेलिब्रेशन ऑफ अ लेगेसी। सर रतन टाटा। Okay, good evening, everyone. So, yesterday night only we got the news and we are reading lot of things. But मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि सबसे महंगी गाड़ी लैंड रोवर और सबसे सस्ती गाड़ी नैनो ये लेकर आए हैं। और आई एम श्योर ऑलमोस्ट सभी को नैनो की स्टोरी पता होगा कि कैसे वो शुरुआत हुई। बट आप इंटेंशन देखिए कितनी अच्छी है कि वो आराम से, मतलब हम लोग भी जैसे कहीं पे जाते हैं आते हैं कुछ चीजें नोटिस करते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं वो मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग कर पाते हैं। मतलब हम सबके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते होंगे, अभी भी आते हैं, दे माइट बी $1 million $1 billion आइडियाज, बट उनके माइंड में जो आइडिया आया और वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया और वो सपना जो था वो पूरा कर पाए। मतलब आई जस्ट शेयर इट इन अ फ्यू वर्ड्स के वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रात का वक्त है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, एंड जैसे ही गाड़ी कहीं पे रुकती है वो साथ में देख रहे हैं कि एक स्कूटर में, 2 व्हीलर में देयर इज ए हस्बैंड एंड वाइफ और उनके साथ में छोटे बच्चे, और वो जो माँ है उसको अपने बच्चों को थोड़ा सा वो कर रही है क्योंकि बारिश हो रही है। एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग
कि भाई क्यों ना इस फैमिली को ये कैसे अफोर्ड कर सकती है गाड़ी के, कम से कम वो भीगने से बच जाएं। और दैट वाज द आइडिया। एंड देन काफी टाइम लगा नैनो को आने में, लेकिन मतलब काफी बार मीटिंग्स भी हुई, तो हर कोई कह रहा था कि नहीं 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। बट उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सब लोग ने ये कर लिया ना, नहीं पॉसिबल है, अब तुम्हें 1 लाख के अंदर ही पॉसिबल करनी होगी, दोबारा आप करो और तभी आना जब ये पॉसिबल हो। तो यू गेट सक्सेस ट्वाइस, पहले अपने माइंड में एंड देन इन रियल। और कहने वाले तो बहुत लोग होते हैं, बट जो करने वाले हैं वो बहुत वो रेयर बहुत हैं। कम होते सो हैं, बहुत सैल्यूट टू रतन टाटा सर। एंड सेकेंडली वो सबको पता है, अगेन अनदर स्टोरी, कि वो कैसे उनकी इंसल्ट टाइप सी हो गई थी, जो वो अपनी कंपनी वाला टाइम, मतलब आप सोचे कि ऐसा टाइम भी आता है कि जब आपको अपनी कंपनी गिरवी रखनी है या बेचनी है, और वहां पर देन somebody मेड अ कमेंट, एंड देन यू कम बैक and then start working, and within no time, just in few years, you buy that company, right? And that to a Land Rover. And the people who refused you, they are like, Acha, okay. So I'm getting goosebumps when I'm sharing this, but this is like, wow. So this is such an inspiration to all the youth and to the upcoming journey. इनके ऊपर आई थिंक कोई फिल्म भी बननी चाहिए। आई रियली वांट टू मैनिफेस्ट कि somebody should मेड अ मूवी ऑन दिस। आई एम श्योर काफी लोग इसकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनेंगे। एंड thank you so much, Sir Ratan Tata, for anything and everything. You have done a lot, and we are always grateful to you, sir. Thank you. Thank you, GJ, for such a love filled. And I think I can only feel love right now. Even if we are sitting virtually, what I can feel is the love for that human, the jewel of a human being who existed on this earth. And I would like to wrap up this program and give the virtual stage to Madhu Mukesh ji, because आज हम सर रतन टाटा को तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ आज दो और स्टॉलवर्ड्स की पुण्यतिथि है, जो कि हैं गुरुदत्त सर एंड हमारे जगजीत सिंह जी। तो डेफिनेटली पहले मैं सिर्फ 2 लाइनें गाऊंगी जो शायद सर रतन टाटा हमसे कहना चाहेंगे, जो मैं नहीं करना चाहूंगी बट करते हैं। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो मेरे यार, मैनू विदा करो। ओके, ऑलराइट। मधु मुकेश जी, आपकी और। बहुत इमोशनल हो गई है श्वेता जी, और स्वाभाविक मैं भी आज जब टीवी पर उनके संस्मरण सुन रहा था लोगों से, तो मैं भी बिल्कुल इमोशनल हो गया था। मेरी आंखों से भी आंसू निकल गए थे कि वाकई में क्या शख्सियत थी वो। और ठीक कब बैठ के रो रहे थे। जो ईश्वर को जो मर्जी है वो हुआ। और आज दत्त साहब भी इंतजार कर रहे हैं, और आज जगजीत साहब का भी डेथ एनिवर्सरी है, और गुरुदत्त साहब का भी है। तो आज एक और प्रोग्राम है, तो मैं एक गीत लेकर के बैठा हूँ। तो एक अंतरा सुनाता हूँ, फिर दिनेश जी एक गाना सुनाएंगे जो दत्त साहब को बहुत पसंद है, अ, जो आप बहुत अच्छा गाते हैं, रफी साहब को। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मेरा, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मेरा।
खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मेरी, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मेरी, चाहत के नगरे चाहे तो आहे सर्द मेरी, दिल के बोझ को ढूंढा कर गया जो हम खा मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार निकला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। थैंक यू। बहुत बढ़िया मधु मुकेश जी। थैंक यू। और आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं जगजीत सिंह साहब के, और हमारे देवीदत्त सर के बड़े भाई और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, आप कुछ भी रोल ले लीजिए, उस सब में फिट बैठते थे। तो उन्हीं की एक फिल्म थी प्यासा, जो आज भी, मैंने आज से करीब 35 साल पहले देखी होगी, लेकिन आज भी पूरी तरह दिमाग पे छाई हुई फिल्म है। और उनका जो एक आइकनिक उनका पोस्टर था जिसमें, और फिल्म में था कि वो एक इसमें थिएटर के गेट पे खड़े होकर जो लास्ट लाइनें गा रहे हैं दोनों हाथ ऊपर करके, उसके दरवाजे को चौखट को पकड़ के, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जो आंखों से उतरता नहीं है कभी भी, उसी की कुछ लाइन गुनगुना देता हूँ। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूब। आगे का भी गाइए ना, अच्छा है वो भी। हाँ, बिटा लो ये
क्या कह रहे हैं? चलो एक स्टेंजा और गा देता हूँ, उसके बाद हाई नोट से हो सकता है ना गाया जाए। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बन, जहां प्यार होता है व्यापार बन। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। थैंक यू। थैंक यू। ये सभी नगमे जो आप सुन रहे हैं, ये देवीदत्त साहब ने मुझे व्हाट्सएप किए थे कि आज ये आप गाइएगा वरांडा में, तो उन्हीं में से दिनेश जी ने भी गाया। तो एक गाना और मैं और ले रहा हूँ जो धर्मेंद्र साहब पे फिल्माया हुआ है, उन्हीं की फिल्म का है ये। ये देवीदत्त साहब की फरमाइश। आपके हसीन रुख पे आज दया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन पे आज दया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। थैंक यू। अब बहुत खूब, बहुत खूब। शेष 30 मिनट जो है हम जगजीत साहब को देना चाहेंगे। तो आप कोई गाना चाहें तो आप प्लीज गाइए, जगजीत सिंह साहब की गजल, या फिर दिनेश जी गाते हैं या फिर मैं गाता हूँ।
मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी एक गाने की। यस यस, वेलकम। आई होप मैं रोऊंगी नहीं अब इस बार। यस। तो वो गाना कुछ ऐसा है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक सुना देता हूं मैं उनकी ही गाने का एक दो अंतरा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, उसका। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू, थैंक। शशि जी, आप कुछ गुनगुनाएंगे जगजीत साहब को? पूर्णिमा मौसी, श्वेता जी, नहीं, रोहिणी अमित जी जी। है ना, वो भी कुछ सुना है। हाँ अमित जी, वेलकम वेलकम। अगर हाँ, सॉरी हमको वो तो सॉरी ने तो सॉरी आज ही सॉरी देखा, सॉरी। तो उनसे कुछ नहीं मैंने सुनना कहा लगा चाहते हैं। वो जी, इतनी मैं अच्छी जरूर जरूर, ऑडियंस बहुत लगी मुझे कि सबको सुन लेगी, तो मैंने कहा ठीक है, वो मैं सॉरी। अमित जी, आप कुछ बराबर गुनगुनाइए। नहीं, मैं रिकमेंड कर देता हूँ वो जगजीत सिंह का एक बहुत खूबसूरत है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है बिल्कुल जिसको। बिल्कुल, वो मैं लेके बैठा हुआ हूँ, आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल सुना दो। जी जी।
इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। क्या बहुत बात सुंदर, है। मतलब बहुत सुंदर। जी, हु इज नेक्स्ट? हाँ, मैं शशि जी बोलूं? कुछ गा रहे हैं, शशि जी, या फिर अभी रोहिणी जी से सुनते चलिए हैं मैं कुछ। भी साथ 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 का गाना 2-4 लाइनें सुना देती हूँ मैं भी। जरूर जी जी जरूर। जी, वेलकम। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं बोलती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए सुनते हैं पारुल जी से। हाँ, मैं थोड़ा लेट आई हूँ, पता नहीं कोई गा चुका है इस गाने को या नहीं, पर मैं रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दवा दवा सा सही
दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं, दवा दवा सा सही, वो पल की जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल की जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तेरी उम्मीद में ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी भूल गई, चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छा ट्राई किया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। चलिए रोहिणी जी क्या सुना रहे हैं? एक जगजीत सिंह जी का गाना तुम बिन से मैं एक ही अंतरा गाऊंगी और अंतरे से स्टार्ट करूंगी। एक लम्हे, मेरे ख्याल से मैं गड़बड़ कर रही हूँ, हाँ, स्टार्टिंग अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है स्टार्टिंग से ही गा देती हूँ। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। अब आज के दिन के लिए, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर
सांस रुकी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। थैंक यू एवरीवन। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है और रोहिणी, क्या बात है, मजेदार। अब चलते हैं हम लोग। पूर्णिमा मौसी, आप क्या सुना रहे हैं? अरे मैं तो कुछ सोचा नहीं, बैठी हूँ सुनने को अमित नहीं नहीं, जी से। सुना दीजिए, दो चार लाइन सुना दीजिए फिर। अच्छा, वो जो आपने गाया था ना, मैं बोल रही थी पूरा गाओ, आपने नहीं गाया, उसी लाइन को मैं पूरा कर दूं। हाँ जरूर जरूर, क्या बात, वो करिए। आगे का भी वो आपने स्लो स्पीड का, तो वो आगे फास्ट में आता है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। वो उसी की 2 लाइन गा दे रही हूँ। जला दो इसे, फूक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर जाए तो क्या है। ये लाइन गाना था मेरे को, और तो फिर हम्म। देखती हूँ कोई गाऊंगी। हाँ। जरूर जरूर, वाह बहुत खूब। हम्म। और जीजे, अब हम चलते हैं जीजे के पास। जीजे, क्या सुना रहे हो आप? कौन सी गजल सुनाएंगे, या कौन सा गुरुदत्त साहब का गाना? जीजे, आप हो पर्दे के पीछे? जीजे लग रहा नहीं, है सुन नहीं रहे, भी कहीं है। चलिए, मैं मधुकर मैं जी जब तक सुना। एक गाना है गुरुदत्त साहब का, जो हम लोग का वरंडे का एंथम सॉन्ग भी है, वो सुना देता हूँ जब तक। फिर हम लोग मधु मुकेश जी और जीजे के पास भी चलेंगे, और जिसको भी गाना है। ये फिल्म 12 o'clock फिल्म का गाना है, 1958 की फिल्म, रफी साहब और गीता दत्त जी का गाया हुआ। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। आया मजा, लाया नशा, तेरे लबों की बहारों का रंग, मौसम जवां साथी हंसी, उस पे नजर के इशारों का रंग, जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। क्या मंजिलें, क्या कारवां, बाहों में तेरी है सारा जहां, अब जाने जा चल दे वहां, मिलते जहां है जमी आसमां, मंजिल से भी कहीं दूर हम आगे निकल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए।
तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक मैं यू। आप सबसे माफी चाहूंगा, मुझे अभी चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप कंटिन्यू थैंक यू रखिए सर। मैम। सर थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपको सुनने का मौका मिला और आपसे मिलने थैंक का यू। भी हमें मौका मिला। Thank थैंक you. यू। थैंक यू Thank बाय वेरी you. बाय। मच सर। Thank you so very much, Mr. Amit, for your time. Thank you. टेक केयर, थैंक थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आप आया करिए कभी कभी। जी जी जी। यू। चलिए तो अब हम चलते मेहता हैं, भी श्वेता जी क्या सुना रहे हैं, फिर शशि जी से सुनते हैं क्या। शशि जी से सुनते हैं, फिर श्वेता जी से सुनेंगे, और फाइनली नहीं, हम एमएम मधुमती जी। बिडू से सुनेंगे। अब मैं एमएम बिडू बोल सकती हूँ, गेस्ट जा चुके हैं। मैं गुरुदत्त जी का गाना गा रही हूँ ये। चलिए सुनते हैं। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये शर्म से देखे गाल चैन के दुश्मन हो गए। ये उलझे उलझे बाल दिलों की उलझन हो गए। तेरे गालों की खैर तेरे बालों की खैर तेरे गालों की खैर तेरे बालों की खैर क्यों ना जुल्मी और जालिम ल जाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना तेरी जुल्फ का साथी बनता अगर मैं गजरा होता। तेरी अखियों में बस जाता अगर मैं कजरा होता। तेरे गजरे की खैर तेरे कजरे की खैर तेरे गजरे की खैर तेरे कजरे की खैर देखे ना जो भी देखे ना कैसे निशाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना कई देखे मोर चकोर चालना ऐसी देखी। ये कमर लचकती डाल डालना ऐसी देखी। ये रंग ये रूप जैसे चढ़ती हो धूप, ये रंग न रूप जैसे चढ़ती हो धूप गोरी, फिर क्यों ना सारा जमाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना। थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो और कौन सुना रहा है गाना। मधु मुकेश जी तो ऑफ कर गए हैं आज के लिए। और जीजे आर यू देयर। श्वेता जी आप क्या कुछ सुनाएंगे। पारुल जी नहीं आज। आज दिनेश जी, मैं कहना चाहूंगी आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है। साथ क्या साथ बात है। में आज बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना, ये भला तो सब भला। हाँ तो हाँ ठीक बात है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी 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 एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। हमें अपने इमोशंस के तरफ हमेशा बहुत सच्चाई से रहना चाहिए। अभी मुझे गाते गाते आंखों में आंसू आ गए, तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। कोई इमोशन आपका आ रहा है तो उसे आने दीजिए, उसको रोकिए मत। उसका कहते हैं ना, सामना कीजिए, उसे एक्सेप्ट करिए, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा कभी। एक
एक स्टेबल मेंटल हेल्थ या एक हेल्दी मेंटल हेल्थ का यही होता है कि कभी हम गुस्सा आए तो गुस्सा निकाल देना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि हम मतलब कहते हैं ना, तभी तो कहते हैं साधना भी करिए, 3 पिलर्स जो हम कहते पूछे वो भी है कि इमोशन से कभी, हाँ, साधना हैं। मतलब गुस्सा आए ही नहीं, कहने का आए, मतलब। हाँ बिल्कुल। और अगर आए भी तो हमें ये पता हो कि हमें किस तरीके से उसे एक्सेप्ट करके उसको जाने देना है। वो भी एक मोमेंट होना चाहिए ना, कि आया और गया, ये नहीं कि ठीक उसी में बात। बैठे हुए हैं हम लोग, हाँ हाँ। बस हो गया ये, आपको। ग्रज हाँ, नहीं रहना ठीक बात है चाहिए। ये। बिल्कुल ये ठीक। नहीं नहीं, तो ठीक बात। मैं बस यही कहना चाहूंगी, नहीं, मेंटल हेल्थ भी हमारा एक ज्वेल है। अगर हम सही से सोचेंगे, सही से रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो जीवन में बहुत बदलाव रहता है, जीवन बहुत अच्छा रहता है। हम अपनी लाइफ को इतना अमेजिंगली जी सकते हैं कि मत पूछिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 3 पिलर्स होते हैं, सेवा, साधना और सत्संग। दैट इज सर्विस। सर रतन टाटा वॉज द ग्रेट एग्जाम्पल हाउ टू कीप सर्विंग। एंड फिर उसके बाद में साधना, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। एंड सत्संग, टू हैव गुड कंपनी, good, यस, which we at veranda always have. So ये बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज इससे आपकी एनर्जीज जो आपके अंदर जा रही है और जो आपके आसपास है, और जो भी आप मतलब किसी और को दे रहे हैं, वो सब बहुत बेहतर होता है। और जो हम सोच रहे हैं वही हमारी ऊर्जा बनती है, आभा मंडल हम जिसे कहते हैं। तो थॉट्स बिकम एक्शंस। तो अगर क्या बात। आई भी नेगेटिव थॉट, एक्सेप्ट करें, उसे पलट दें। आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि हम सर्व करना सीखें और उसके बारे में गाएं ना। जैसे कि जो सर रतन टाटा करते थे, मेरे दादाजी भी करते थे, वो हमेशा कहते थे, नेकी कर दरिया में डाल, यू ठीक डोंट बात है, हैव क्या टू बात। टॉक अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो करते जाइए जितना हो सके। आपसे बोलने की जरूरत है ही नहीं। ह्यूमन सही लाइफ बात, एक्सपीरियंस करने को मिली है, खुशी खुशी करिए, दुखी ठीक मत बात। होइए। श्वेता, इस सब के लिए ना पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत। नेगेटिविटी अगर मन में आती है तो झटक देनी चाहिए, अगर पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ही अच्छी रहेगी। अपने आप नेगेटिविटी, पॉजिटिव, जाने से बचेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। और बिल्कुल पॉजिटिविटी के लिए मेरे हिसाब से एक मन में यदि ये आदमी समझ ले कि मैं इस ब्रह्मांड में बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरे जैसे सब आते जाते चले जाते और पता भी नहीं चलता है, तो अपने आप आदमी पॉजिटिव रहेगा कि हाँ, मैं तो सब एक्सेप्टेड है, नेचर ने जो किया सब एक्सेप्टेड है, तो अपने आप बिल्कुल। फ्लो करते जाइए लाइफ के साथ, फ्लो करते जैसे थे। जैसे हाँ, नेचर ने हमें फ्लो मौसम है। करने के लिए भेजा है। हम लोग का बस यहाँ कोई पे हमारा जोर नहीं है, हमारा कोई तोड़ नहीं इस दुनिया में। नेचर ने भेजा है, जाओ शांति से रहो और आ जाओ वापस। बिल्कुल तो बिल्कुल। और कुछ नहीं है। और कुछ हम यहाँ नहीं कुछ है। नहीं है कि हम ये हैं वो है, कुछ नहीं है। आपको तो पता ही होगा दिनेश जी, ये वाला जो अपने जैनियों में तो बहुत गाते हैं कि हम्म, माटी रिया काया, का- हम्म, आखिर माटी में मैं मिल मिलता जा। है। क्या पर तू इतरावे मनवा, क्या पर तू इतरावे है। मीन्स इसका हम्म, मतलब मैं बताती हूँ ऑडियंस जिनको ना समझ आया हो, कि ये जो हमारा बॉडी है सारा माटी तो है। किस बात हम्म, का घमंड, किस बात का मैं, चले जाना सही, है। हाँ सही कौन बात, मैं, कौन मैं। सही छोटा बात। सा बात जो अभी अभी आपने कहा। और मैं बस हम्म, एक शेर से ये मेंटल हेल्थ को खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही सब कुछ है। खुश रहिए और बात करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए। हाँ, किसी को, और एक बस मैं कहना चाहूँ, किसी को कोई अच्छा, वो अभी बोले ना, संगत अच्छी होनी चाहिए, किसी को अच्छा संगत नहीं मिल रही हो बात करने के लिए, तो मेरे से कर लिया कीजिए। मेरे दादाजी ये शेर कहते थे और हमेशा कहते थे कि इसको हमेशा रखो अपने साथ, कि मगरूर दरख्तों को आंधियां उड़ा के ले जाएंगी, मगरूर दरख्तों को आंधियां उड़ा के ले जाएंगी, वही शाख बचेगी दोस्तों जो लचक जाए। झुक जाए, लचक जाए, लटक क्या बात, जाएगी, वाह झुक वाह, जाएगी। जितने बिल्कुल बहुत सही। बड़ी, फल हैं हमारे पास में, औरों को दें, उनसे शेयर करें, सही पढ़ेंगे। बात। और हम्म, बस सोचे ना, देते जाए। तो बस। यस, और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन मैं एक ही बात कहूंगी, स्माइल करें और वही बांटें, प्यार करें और वही बांटें। क्या बात, प्यार बहुत बांटते चलो।
प्यार बांटते चलो, क्या बात है। इसी पर मैं चलिए एक आज बहुत थोड़ा अच्छे सा नोट गाना के सुना साथ। देती हूँ। हाँ जरूर जरूर ऋषि जरूर। के थोड़ा सा गाना सुना देती हूँ, प्यासा हाँ का हाँ गाना जरूर। है। तो अभी श्वेता ने हमें बहुत कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, और सबसे अच्छी बात ये बताई कि पॉजिटिव रहो। अब इसी पर मैं एक गाना गा देती हूँ। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, जाग उठे ख्वाब कई, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, नैन झुक झुक के उठे, पाँव रुक रुक के उठे, आ गई चाल नई, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जुल्फ शाने पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी, खुल गए राज कई, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। थैंक यू श्वेता, बहुत सारी चीजें इसमें। बहुत बढ़िया, क्या बात है। थैंक यू। एकदम बहुत बढ़िया गाना गाया। और आज 1.5 घंटा का सेशन, बहुत तरह की बातें हो गई, बहुत टॉपिक्स पे बातें हो गई, बहुत चीजें हुई है, मेरा केवल गाना नहीं। शुरू का थोड़ा सा बहुत मिस हो गया, अब मैं देखूंगी। हाँ बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोग साइन आउट करते हैं आज के लिए, कल फिर मिलते हैं म्यूजिक वरांडा पे। जब तक के लिए बिल्कुल। गुड नाइट, शब्बा खैर। ये जो लाइव चल रहा है उसको कौन बंद करेगा, पहले ये देख लो, ऐसा शुभ ना हो कि रात्रि। अंधेरे में। डीजे को बंद करना चाहिए। जीजे भी अच्छा, ठीक है, तो जीजे इसको बंद डीजे का करिए। ही होगा। लाइव। ओके। शुभ रात्रि तो सबको। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, शुभ कल मिलते रात्रि। हैं इसी समय। कल मिलते ओके। हैं। श्वेता जी आप हो क्या श्वेता, अभी लाइव एडमिन? लाइव कौन बंद करेगा? क्या बोल लाइव रहे हैं चल दिनेश जी? सेशन ये लाइव चल रहा है ना, इसको कौन बंद करेगा? आई थिंक जीजे। डीजे जीजे। ना। ओके, जीजे, कॉल करता हूँ मैं। कॉल करो जीजे को। बाय बाय। रात्रि। लीव कर जाए।